उस समय मुझे पता लगा कि भाई ये तो एवरी डे इट्स लाइक अ पेंडोरा's बॉक्स. You are discovering something new. Is the way the universe works. When you are continuously at something, then the universe starts providing you with the right combinations, I should say. मेरा नाम रेखा डे है. मैं रांची में पली बढ़ी हूँ. मेरी 11 साल की बेटी है. मैं 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास होल्ड करती हूँ. एक गृहिणी होने के साथ साथ मैं एक बैम्बू एंटरप्रेन्योर हूँ. I found a gentleman who was making very, very innovative bamboo houses, and I visited the facility to see what's happening. Actually, that was just the start of the journey. Not that I didn't know that there will be many challenges and it's not just easy to set up your own enterprise. पहले बैम्बू बिजनेस में बहुत बाधाएं थी. कागजी कार्रवाई बहुत हुआ करते थे. ऑफिस के चक्कर लगाते रहो. To manage your permissions, you had to actually travel from one office to the other, and often those offices would be located in different states. That involved a whole lot of time investment. आप ऑर्डर कभी कुछ करते थे, आपको या तो मिक्स्ड मटेरियल मिलता था या सिर्फ या अलग स्पीशीज़ मिलता था. काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हुआ करता था ये सारा कुछ झेलना. मैंने तो 2016 में स्टार्ट किया था, लेकिन जो फर्स्ट कंसाइनमेंट मैं अपने एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव के में मैं लेके आई हूँ, मेरे ख्याल से 2017 में मैं लाई हूँ, जब फॉरेस्ट एक्ट होम ग्रोन बैम्बू को राइजोम एक्नॉलेज किया भारत सरकार ने. The Forest Rights Act of India, which was a colonial act passed in 1927 and which had not been amended since, it classified bamboo as a tree and not a grass. And just by that simple nomenclature and simple classification, it meant that there were severe restrictions on the cutting of bamboo, on trading of bamboo, or the use of bamboo for any commercial purposes. It made bamboo completely inaccessible to the tribal communities who were directly dependent on bamboo as a source of their livelihoods. We termed our campaign as the Bamboo is Not a Tree campaign. In a big win for us, the act was eventually amended and there was a simple tweak in nomenclature. Bamboo was no longer a tree, it was a grass. Just that simple change really has worked to open up bamboo markets in India. फैक्ट्री में जो हम चीज़ें सिखाते हैं, पहली बात तो बैम्बू ट्रीटमेंट वहाँ पे होती है. वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आउटडोर कंस्ट्रक्शन के लिए. हमारे जितने वर्कर्स हैं वो आसपास के गांव से ही हैं और हम प्रमोट करते हैं कि आसपास के गांव से ही हम मैक्सिमम लोगों को लाएं. तो हम लोग वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं ताकि आसपास के लोगों को समझ में आए कि इससे भी व्यवसाय हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है और उसके लिए जो हुनर चाहिए वो हम वहाँ पे सिखाते हैं उनको. आई वुड से इट्स अ मैजिकल प्रोडक्ट. अच्छा लगता है हम लोगों को जब साइड पर आ जाते हैं. हमको पता है ये आज ये काम करना है, मतलब हमको बहुत ही प्यारा लगता है और धीरे धीरे उसका वो डिज़ाइन भी बदलते जा रहे हैं. मतलब बहुत अच्छा लगने लगता है. अपना परिवार कैसा वो हो जाता है. टाइम व्यतीत करना ही आदमी को अच्छा चाहिए भी. हमने जो अभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं बैम्बू कंस्ट्रक्शन में, वो बद्रीनाथ में है जो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था. वहाँ पे 6 कॉटेजेस हमने बनाए हैं. हमने फिर मसूरी में एक होटल के लिए हमने 4 कॉटेजेस बनाए. एंड हमने कुछ फर्नीचर्स भी, रस्टिक गार्डन फर्नीचर्स हमने ट्राई किया है. और अब इसका नेक्स्ट वर्जन जो है, इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं विद अ फ्यू डैनिश डिज़ाइनर्स. हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी बद्रीनाथ में, ऋषिकेश में, मसूरी एंड देहरादून. Across the spectrum, for tribals, for entrepreneurs, for local governments and communities, the bamboo has become a great source of livelihood as well as an environmental benefit. Like Rekha, who is able to build a whole business around bamboo as a resource material. Honestly, bamboo environment को बचा सकता है.
The construction industry itself can actually absorb so much of the negative carbon footprint that we are leaving into the environment. That is something which we need to realize as responsible citizens, that we need to replace our building materials with earth-friendly materials. मेरा सपना है कि मैं बैम्बू को आइकिया की तरह एक सोफिस्टिकेटेड फर्नीचर के लेवल तक ले जाऊं। भारत एक एक्सपोर्ट देश बने बैम्बू एज अ रॉ मटेरियल को यूज़ करके। लेकिन हाँ, हम एक एक छोटे छोटे कदम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने साल लगेंगे, लेकिन जितने भी लगे मुझे लगता है कि इस लाइफ टाइम में मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ।